میرے ساتھ حوالہ نکالیں گے. مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر ہم 12ویں آیت تک خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے. لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 2 باب اس کی 8ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے. آمین. انجیل مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال اس کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک مناجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جا رہا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آپ سب بیٹھ سکتے ہیں. کی طرف سے، میرے چرچ کی طرف سے آپ سب کو بہت زیادہ کرسمس مبارک ہو. ہیپی کرسمس. ہاللویا. زوردار تالیاں. ہم خدا کے یسوع کے جنم دن کو آج منا رہے ہیں، کیونکہ 12 بج چکے ہیں اور 25 دسمبر کا آغاز ہو چکا ہے. ہاللویا. بہت سارے لوگ جو ہیں اس دن کی مخالفت کرتے ہیں کہ 25 تاریخ کو جی ہمیں میلاد مسیح نہیں منانا چاہیے، کیونکہ ایگزیکٹ جو فگر ہے بائبل مقدس میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ 25 دسمبر کو ہی ہم خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا دن منائیں. آیا کہیں نہیں لکھا ہے، اور کہیں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ نہ مناؤ. بات فالو کریں، ہم کسی دن کو کسی ڈیٹ کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں. ایک نقطہ یاد رکھنا ہے، ہم کسی دن کو، ٹھیک ہے، ہم کسی ڈیٹ کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم سیلیبریٹ اس کو کر رہے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، جس کے کھولنے کو کوئی باندھ نہیں سکتا ہے اور جس کے باندھنے کو کھول نہیں سکتا ہے. وہ آج کے دن پیدا ہوا ہے، اس پیدائش کے دن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہاللویا. ہائے زوردار تالیاں. اس آج سے مراد آج، جس دن بھی آپ اس کو پکاریں گے، جس دن بھی آپ کے دل میں یہ بات آئے گی، آپ کو چاہیے کہ اس آج کے دن کو سیلیبریٹ کرنا. اور وہ آج کا دن آج ہے جو علماء کرام نے متعین کیا ہے، اس کو ٹھہرایا ہے کہ 25 دسمبر کو ہم پوری دنیا جو ہے، جو مسیح ہے، جو غیر مسیح ہے، وہ سب اس ذات الہی کا جو کلمہ تھا، جو آسمان پر تھا تو کامل خدا تھا، جب زمین پر آیا تو وہ کامل انسان بن گیا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا کہ باپ نے تو دیکھا. ہم اس کی عید کا، اس کی پیدائش کا دنیاوی نقطۂ نظر سے ضروری ہے، اس کے دن کو سیلیبریٹ کرتے، نہ کہ ہم 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہاللویا. در حقیقت بہت سے اینٹی کرائسٹ ہیں، مخالف مسیح ہیں، در حقیقت وہ 25 دسمبر کی مخالفت نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس کرسمس ٹری کی مخالفت نہیں کری، سینٹا کی مخالفت نہیں کر رہے ہوتے، وہ مسیح موت کی، یشوع مسیح کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، جس کی پیدائش کا دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہاللویا. لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس دن کو سیلیبریٹ کریں. وہ کہیں جی ستارے کی پوجا کرتے ہیں، سیلیبریشن کا نشان ہے. ٹری کی مخالفت کرتے ہیں، وہ عجیب و غریب اس دن کی مخالفت کرتے ہیں. در حقیقت ان کا جو لبے لباب ہے، جو ان کی جو بیک پہ ہے، جو بات وہ کرنا چاہتے ہیں اور کروانا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ پیدائش کو ہی نہیں مانتے کہ وہ
मुजस्सम हुआ था। जब हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की बात पर लिखा गया इंजील बयान उसका पहला बाब भी, तो वहां में कलाम मुजस्सम, क्या हुआ? इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ, कलाम मुजस्सम हुआ है। और जब मुजस्सम हुआ है तो हम उसकी मुजस्सम होने की, उसकी तजस्सुम की को क्यों सेलिब्रेट ना करें? इसलिए हमने नहीं इसको, बहुत सारे लोग आपको रोकेंगे दर हकीकत एंटी क्राइस्ट, वो दर हकीकत हम कब कहते हैं जी वो हम 25 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? हम यीशु की पैदाइश को जो ज़मीनी है, आपकी इस्तिलाहात के लिए, आपकी अकल के मुताबिक ये बात कह रहा हूं कि पैदाइश की दर हकीकत तजस्सुम हुआ है, उसका मुजस्सम हुआ है। खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ है। मुजस्सम का मतलब है अनविजिबल खुदा विजिबल शक्ल में वो जमीन पर आ गया है। नादीदनी खुदा दीदनी शक्ल में जाहिर होकर चरनी में पैदा हुआ है। इस चीज को हम मुजस्सम कहते हैं। वो खुदा जो दिखाई नहीं देता था, वो खुदा जो किसी को नजर नहीं आ सकता था, अगर कोई उसके पंजाबी के परछावे नहीं मिले तो कश आपके देख पैदा इट्स बी मूसा, उनके परछावे को कोई नहीं देख सकता। वो नादीदनी खुदा, ना नजर आने, वो अनदेखे खुदा की सूरत और खुदा के जलाल का परतो है। वो अनदेखे खुदा की सूरत पर है, वो खुदा जो नजर नहीं आता था। यीशु ने जब वो मुजस्सम हुआ है, इंसान बना है, इंसानी शक्ल में आया है, वो कलाम जो कलमा जो खुदा के मुंह से सादर होता है, जब वो जमीन पर मुजस्सम होकर आता है तो हम उसमें से खुदा को देखते हैं। हालेलुया। वरना खुदा को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। अकेला बेटा ही खुदा को जानता था, और उसने ही जो खुदा की जलाल का परतो और उसकी जात का नक्शा वो मुजस्सम हुआ तो हमने देखा। अब यहां पर एक बात कहूंगा कि जो ये लोग काम करते हैं वो गलत करते हैं। हमें इसकी पैरवी नहीं करनी, तकलीद नहीं करनी, फॉलोवर्स नहीं होना, हमने यीशु के फॉलोवर्स होना। हालेलुया। अब मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज भी कहूंगा, फिर कलाम का कि ऑक्सीजन के बगैर इंसान कुछ मिनटों के लिए जिंदा रह सकता है। अगर हवा खत्म हो जाए तो इंसान कुछ सेकंड या कुछ मिनट जिंदा रह सकता है। अगर वो पानी ना पिए तो कुछ घंटे या एक दिन वो जिंदा रह सकता है। अगर वो रोटी ना खाए तो कुछ दिन वो जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान की जिंदगी यीशु मसीह नहीं है, उसका कलाम नहीं है, उसके कलाम की बातें नहीं है, तो वो एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। हालेलुया। जब कहा क्या पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो वहां पे लेकिन जिस दिन तुमने ये फल खाया तुम मरा, लेकिन जिस्मानी नुक्ता नजर से वो जिंदा थे, लेकिन रूहानी तौर पर वो मर गए थे। इसलिए जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में नहीं होगा, खुदा के कलाम की बातें हमारी जिंदगी में नहीं होंगी, हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में, हमारे ख्वाबों में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में खुदा के कलाम की बातें और उसके कलाम की खुशबू नहीं होगी, तो दर हकीकत हम जिंदा तो होंगे, लेकिन जिंदा भी ऐसे होंगे कि मरों से बदतर होगा। ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकता है, पानी के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है, और रोटी के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन यीशु मसीह के बगैर इंसान एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। इस बात को गले का तोड़ मारा लीजिए। अब यहां पर बड़ी खूबसूरत आयत, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहाए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, किनसे कहा? चरवाहे किसको कहते हैं? बात को समझना, बात को समझना। चरवाहे किसको कहते हैं? जिन्हें पेटा चढ़ाते ने चरवाहे किसको कहते हैं? ओके। अब क्या कहते हैं? डरो मत, क्योंकि देखो, मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि देखो, मेरी तरफ देखे, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। क्या देता हूं? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जोर से बोले, कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? आज मैं आपसे
इशारा देता हूँ। अपने साथ वाले बोला आगे जरा, कम अनवर साहब प्लीज आइए, प्लीज जल्दी आए प्लीज। आप ऐसे कह रहे हैं, देखो जरा कहें जल्दी जल्दी क्विकली, देखो मैं तुम्हें, जी मैं तुम्हें, बोले मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज ला दे रहा तुझे पता लग के आज जोर से बोले कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनाजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। सुनते हो जाते हो? हालेलुया। सोना नहीं है। अब लिस्ट चाहता है कि सुनते रहिए, यीशु उसका दिन गुजर जाए, सुनते रहे, सो के वक्त गुजार, कोई शराब पी के सो के वक्त गुजार। अब हम इस बात के ऊपर रहेंगे कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनाजी पैदा हुआ है, यानी के मेरे अजीज बहन भाइयों, हम अपने घरों में चलाना करते हैं, हम अपने घरों में रोशनी करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें ला के लगाते हैं ताकि हमारा घर खूबसूरत लगे, लेकिन अगर हमारे अंदर अंधकार है, हमारे अंदर बेदीनी की स्पिरिट काम कर रही है, अंधेरा है, तो वो चरागा भी हमारे अंदर के जो बातन के अंदर अंधेरा है उसको रोशनी नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह पैदा इसलिए नहीं हुआ है गलियां से जा दो, बोतलों के टक खोल दो, है जिसमें अगर बारिश पै जाए तो लोग पेट्रोल बोतल खोल दो, ला बारिश हो रही, बारिश से बोतल में की चक्कर, बारिश हुआ चलो बोतल खोल दो, यार ये कोई बात नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपने सेलिब्रेशन करनी है, लेकिन यीशु में रह के भाई, हालेलुया हालेलुया। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब मुकाशवा की यूहन्ना की मार्फत जो लिखा गया, मुकाशवा की किताब है, यीशु मसीह का दर है कि मुकाशवा है, उसमें यूं लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, और उसकी आंख पर ये नाम लिखा होगा कि वो बादशाहों का बादशाह। जरा जोर से बोले, क्या हो गया? जोर, उसकी आंख पर ये नाम लिखा होगा, पता नहीं है, उसकी रान पर ये नाम लिखा होगा, बंदे ने सांस खाए हुए अपने दिल साफ हो गए। हाँ जी, 1 2 3 स्टार्ट। उसकी रान पर ये नाम लिखा होगा। अब दुनिया में बहुत सारे बादशाह हुए, दुनिया में इस रोए जमीन पर, इस कुर्राए अर्ज पर बहुत सारे बादशाह हुए हैं, बहुत सारे खुदावंद हुए हैं, बहुत सारी कुतुब में ये लिखा हुआ है कि वो बादशाह है, उसका बाप बादशाह था, उसका बाप बादशाह था, फला बादशाह गुजरा है, उसने ये किया है, उसने वो किया है, ये हमारा खुदावंद है, ये हमारा आका है, ये हमारा मालिक है, ये हमारा साहिब है। बहुत सारी कुतुब में ये लिखा हुआ है कि बाइबल मुकद्दस में भी यहाँ तक ये लिखा है कि आसमान और जमीन पर बहुत सारे बादशाह हैं, खुदावंद है। लेकिन मैं आज आपके सामने ये हकीकत वाज़ेह करना चाहता हूँ कि दुनिया की किसी भी किताब में, दुनिया के किसी भी सफ़े पे ये हरगिज़ नहीं लिखा हुआ है कि वो मुनाजियों का मुनाजी है, क्योंकि मुनाजी सिर्फ एक है जो आज पैदा हुआ है, और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनाजी पैदा हुआ है, एक मुनाजी पैदा हुआ है, एक मुनाजी पैदा हुआ है, और वो मसीह खुदा है, और वो मसीह खुदा है, और वो मसीह खुदा है। बादशाह बहुत ज्यादा है, खुदा बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि आज कोई मुनाजी पैदा हुआ,
आज कोई मुनज्जी सिर्फ एक है, नजात दहिंदा एक है, जिसको कोई छू ले या कोई उसको छू ले नजात मिल जाती है, मोक्षा होना शुरू हो जाता है। कलाम मुजस्सम हुआ है भाई, कलाम मुजस्सम हुआ है। हम क्यों ना उस कलाम की जो उसके तजस्सुम की ईद को सेलिब्रेट करें। हालेलुया हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, अगर आप परेशान हैं, तो आप ये यकीन रखें कि आप शिफा पा लेंगे। क्यों पाएंगे? वही कलाम मुजस्सम हुआ है, कलाम मुजस्सम हुआ है। और वो मुजस्सम इसलिए हुआ है कि अंधे देखे, गूंगे बोले, लड़ाई चले और लोग रिहाई पाए, और जो इब्लीस के हाथों से दुख उठा रहे हैं वो मखजी और नजात पाए। क्यों? क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ है। हालेलुया। आए और उस जो कलाम मुजस्सम हुआ है उसके लिए जोरदार इस रोज वाला भी बयान कर सकता हूँ, जो बात है मैंने वो कही कि कलाम मुजस्सम हुआ है। लोग कहेंगे आप शिफा नहीं पा सकते, आप कहें क्यों भी? कलाम मुजस्सम हुआ है, कलाम मुजस्सम हुआ। जो अहद अतीक में कहता वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर अपने लोगों को शिफा, वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर लोगों को रिहाई देता है और क्या है? शिफा बख्शता है। वही कलाम जब नए अहदनामे में हम देखते हैं तो वो कलाम मुजस्सम होता है। तो इसराइल की गलियों में अंधे देखना शुरू हो जाते हैं, लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं, गूंगे बोलना शुरू हो जाते हैं, और बहरे सुनना शुरू हो जाते हैं। क्यों भाई? कलाम मुजस्सम हुआ है, कलाम मुजस्सम हुआ है, कलाम मुजस्सम हुआ है। और उसकी मुजस्सम होने की ईद को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये क्रिसमस ट्री जो है, इसके अंदर देखिए, ये क्रिसमस ट्री एक जस्ट एक निशान है। ये हमारे ईमान का क्या है? वो कोई इजहार नहीं है, ईमान का इजहार सलीब है। हालेलुया। ये तजस्सुम की तकरीर है, ये तजस्सुम की तकरीर है, क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ है। और जब कलाम मुजस्सम हुआ है तो हम आजाद भी हो गए हैं। हालेलुया। हमने शिफा भी पाली है, हमने नजात भी पाली है, हम छुटकारा पा चुके हैं। क्यों भाई? कलाम मुजस्सम हुआ है। क्या हुआ है? कलाम मुजस्सम हुआ। हम जब हम उसके तजस्सुम की, उसके मुजस्सम होने की ईद को क्यों ना मनाएं? हम 25 तारीख को नहीं मनाते हैं, हम 25 तारीख को सेलिब्रेट नहीं करते, हम उस तारीख को, उस डेट के ऊपर ईमान नहीं लाते हैं, हम उस दिन के ऊपर ईमान नहीं लाते हैं, हम सितारों की पूजा नहीं करते हैं, हम इस दरख्त की पूजा नहीं करते भाई। हम उस दिन को नहीं बल्कि उस शहजादे की, उस बादशाह के बादशाह की, उस मुनज्जी की जमीनी पैदाइश की ईद को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ है। हालेलुया। आए जोरदार ताली और बात से